Hello friends, welcome to Afflix Education. Today we are going to discuss about the aggregate functions. Aggregate function is very important in MySQL through which we can find the operations, we can perform the operations on you can say a numerical columns and numerical data. There are the six aggregate functions in MySQL. You can see here, some function, average function, function, max function, and count star. There are six aggregate functions. We can see one by one in the practicals here, and we can explain here. You can see the some function has some you can say syntax, select, sum, name of the column inside the brackets, and from table name. Here I have taken a table EMP. मैंने EMP से टेबल फेच करने का ट्राई किया है, और वहां पर ई सैलरी इज द न्यूमेरिक कॉलम. इसके लिए मैंने यहाँ पर ई सैलरी कॉलम एक्सेप्ट मतलब सेलेक्ट किया है. सो वी कैन सेलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम EMP and get the value e salary. Summation of all the columns in the salary can execute one by one here. And second one is, similarly we can see select average salary e salary from EMP. Of average salary of that particular column, we can find the average of the salary. In that particular column, which one is the minimum salary, you can use here mean function, mean, through which we can get the minimum value in that particular column. Max, you can see here the max salary of that particular column. Count and count star, there is a two function of the same name, but you can see here star means all the columns, all the rows, not columns. We are talking about the rows wise. Okay, how many records in our table, it counts the count star. एंड इन द काउंट फंक्शन, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैंने एक कॉलम का नाम पास किया है, वो वैल्यूज उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को वो काउंट करेगा. आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टेबल सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, और सॉफ्टवेयर पर आप देख सकते हो चीजें आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो. जैसे आई हैड लॉग इन हियर, यूज टेबल, suppose that I have used here the test table, test database, and from the test database show tables. You can see here show tables. I'm using here EMP and EMP1. You can see here select star from EMP table, and you will know data set, and EMP1 is have some data set, and you will get the values like that. So we can use different tables. I have database. Suppose that I have used here TYBCom, for example, and you can see the show tables. You can see EMP employee, and this you can select star from EMP table, and you will get the record like that. E salary is the from there, and I am getting the some values from the particular column. So we can apply here different types of operations. जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, select the e salary from the this. We can get the all the values, all the records of the table. See, when we are writing here any query like the select sum of the table, sum of the column name, sum of the column name is like the e salary, and you can put here any column name. Any column name means only the numerical values column, which have the numerical values. If you want to join, you can join. You can do some operations like the average, mean, max. काउंट कर सकते हो. काउंट के लिए तो एनी कॉलम आप काउंट कर सकते हो, बट नल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा ये. इसीलिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. आपको यहाँ पर मैं काउंट करके भी दिखा देता हूँ, आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ कि वन बाय वन आपकी क्या क्या वैल्यूज डिस्प्ले करेगा, कौन सी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा. सेलेक्ट सम e salary from the EMP, you will get the data like the all the sums of the that particular column. जो वैल्यूज यहाँ पर दिख रही हैं, ये कॉलम दिख रहा है आपको, कॉलम
एक कॉलम की सभी वैल्यूज को सम करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है, 89,700, you will get the value of whole values of that particular column, and you can find the average of that value. You know the average is nothing but sum of the data divide by number of the data. यहाँ पर numbers कितने हैं, 10 है, और आप देख सकते हो समेशन इतना आ गया है, इसमें से डिवाइड बाय 10 करोगे तो जो वैल्यूज आएगी दैट इज द एवरेज. नाउ यू कैन राइट हियर select, you can say select select star, yeah, select AVG, average from e-salary, e-salary, e-salary from table का नाम, table is EMP. You can put here the EMP, you will get the average. You can see this value divided by 10 because you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 values in your 10 record in your table. So divide by 10, that is finding the average. You will get the maximum and minimal value in this column. कैसे find out कर सकते हैं? You can see here, select, you can write here select min, and you can write here salary, salary from EMP. Mean value, you will get the mean value from here. This is a 5,000, and if you put here the max value, you will get the maximum value in that particular column. That is the 20,000. You can see that 20,000 is the maximum value in this particular column, and minimum value is 5,000. 5,002 is there. That's why this value is 2. So you can see here one by one and values. And next आता है आपका कि count and count stars. First of all, you see the table values, and now I want to count the values from the from particular this table. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, count function. So you can use here the count function, and you can use the star, count star from EMP, right? Count star from EMP. There is a no case sensitive, so you can use any type of you can write the capital or small, there is no matter. ठीक है. अब यहाँ पर आता है बात, आपका काउंट आपने यूज किया, काउंट करने के बाद आफ्टर द काउंटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द 10 रो, राइट? ऑल वैल्यूज यहाँ से काउंट किया, पूरी वैल्यूज को काउंट कर दिया, उसको 10 वैल्यूज मिल गया. बट आई वांट टू काउंट द ई डिपार्टमेंट बिकॉज 1 इज नल. व्हाट विल बी द आउटपुट? यू कैन से हियर, you can say EDEPT, department, and it return numeric values, that is 9. You can see one value is null value, that's why it returned the it returned 9 value, because अब पहले ही मैंने आपको बोला था कि aggregate function should not apply on the null values, so ignore the null value and get the value like that. तो यहाँ पर count ई डिपार्टमेंट किया और यहाँ पर वैल्यू मिल गई 9. आप देख दोनों के में डिफरेंसेस क्या क्या है. तो यहाँ पर अब कोई भी वैल्यू हो, कोई भी कॉलम हो, अगर काउंट करना है उस पर्टिकुलर कॉलम को, सिर्फ और सिर्फ वो नल वैल्यूज को इग्नोर करेगा, बाकी सभी वैल्यू को काउंट करके और जो भी जितने नंबर्स रहेंगे उसको रिटर्न करके ये वैल्यू बता देगा. नाउ यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई. लाइक जब हम यहाँ पर ग्रुप बाई यूज करते हैं या ऑर्डर बाई यूज करते हैं तो उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं जरा आप देखो. जैसे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय और सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज मुझे प्रिंट करना है, उसको किस तरह से लिखते हैं हम? आप ऐसे लिख सकते हो, राइट? कैसे लिख सकते हैं? ग्रुप बाय क्लास. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप बाय. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप बाय. GROUP, ग्रुप बाय क्लास. Group by class is the finding the group wise data, in the sense की department wise, you can say salary wise. आप जिसको चाहिए एक कैटेगरी बना दो कि जो मतलब कि 5,000 से लेकर के 5,000 का एक ग्रुप है, 10,000 का एक ग्रुप है, लेकिन उतने ग्रुप्स होने चाहिए. देन यू विल गेट द ग्रुप बाय डेटा. बेस्ट ऑप्शन इज इफ यू फाइंडिंग द डिपार्टमेंट वाइज. एक डिपार्टमेंट 10 एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसका सम एक जगह बताएगा. IT डिपार्टमेंट में काम करने वालों को अलग, अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वालों को अलग, और मार्केटिंग वाले अलग, सेल्स वाले अलग. सपोज दैट आई हैव गिवन हियर some different types of department. You can say account department, IT department, HR department, marketing department, HR marketing. यहाँ पर null values है, right? Null, ignore the null values, but there are some department you will get the values, some values. Null भी display करेगा because one that have the data. So you can see the group wise. Select, you can say e name,
comma e salary from from emp from emp from emp. Just you write down group by what, group by e salary, सॉरी ग्रुप बाय ई डिपार्टमेंट, DEPT, ई डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी डिस्प्ले करनी है। तो ई नेम और ई सैलरी आप देख सकते हो, ई नेम और ई सैलरी डिस्प्ले कर दिया है। एम्प्लॉय का नाम, अगर आपको डिपार्टमेंट भी डिस्प्ले करना है तो यू कैन डिस्प्ले द डिपार्टमेंट आल्सो, EDEPT डिपार्टमेंट, ई सैलरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट वाइज। HR की सैलरी नल। और अभी अब यहाँ पर ग्रुप वाइज आपकी सैलरी डिस्प्ले कर दिया है। आप ग्रुप वाइज आपने आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है। ग्रुप वाइज मतलब डिपार्टमेंट वाइज आपको एवरेज सैलरी फाइंड आउट करना, तो यू कैन फाइंड द डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, जरा आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर AVG डिपार्टमेंट वाइज मुझे एवरेज सैलरी चाहिए, तो यहाँ पर आपने यूज कर दिया AVG, एवरेज सैलरी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, दीज आर द एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। देखो नल का भी है 8000, अकाउंट्स का भी है, HR का कितना 7000 है, IT का आप देख सकते हैं यहाँ पर 15,000 है, मार्केटिंग का भी एवरेज सैलरी, राइट। अगर आप सम ऑफ द सैलरी फाइंड आउट करते हो कि डिपार्टमेंट वाइज सम सैलरी चाहिए, यू कैन सी हियर सम ऑफ द सैलरी ऑफ दिस डिपार्टमेंट वाइज। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी किसकी मिलती है, यू विल गेट द मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। यू कैन यूज हियर मैक्स फंक्शन डिपार्टमेंट वाइज। अब देख सकते हो, अब यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो आपकी विच डिपार्टमेंट है गेटिंग द मैक्सिमम सैलरी। सो आपको इजी होगा समझने के लिए, आपको इजी होगा आपको अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए कि ग्रुप बाय का यूज क्या है। डिपार्टमेंट में 10 टाइप के डिपार्टमेंट है, सबका अलग अलग सैलरी फाइंड आउट करना है आपको। यू कैन फाइंड द इजिली एंड गेट द वैल्यू, right? So you can use here a group by class which is used to some category wise, you can say category wise। category का मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट कैटेगरी है। अगर सैलरी आपने स्लैब बनाया 5000, 10,000, 15,000, 20,000, मैंने तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखा है, इसके लिए हम अगर बनाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 5000 दो बार रिपीट हुआ, बाकी सभी वैल्यू जैसे डिस्प्ले कर देगा। सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ राइटिंग दीज थिंग्स, ठीक है। सेकंड आता है आपका किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो वे से हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ऑर्डर बाय असेंडिंग एंड ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। किसी भी डेटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में आप डिस्प्ले कर सकते हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ASC एंड DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। तो आपको ऐसे बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर डेटा डिस्प्ले होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपको जैसे ये सैलरी मैंने डिस्प्ले किया था यहाँ पर ऑर्डर बाय, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर बाय यहाँ पर लिख देता हूँ ई सैलरी, फॉर एग्जाम्पल ESALARY ई सैलरी, देन यू विल गेट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। देख सकते हो आप, अगर ऑर्डर बाय सैलरी यूज करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट है किसमें है असेंडिंग ऑर्डर, विदाउट ASC लिखे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले हुआ। और अगर मुझे ये डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कि आप इसको एक मिनट भाई, जस्ट यू कैन सी, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जस्ट यू राइट डाउन हियर असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, जैसा बताया मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। जब व्हेन यू राइटिंग हियर ASC देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस रिकॉर्ड एंड नाउ this record। So when we are putting some values in descending order, and when we are required to print the values in descending order, just you write down here DESC, you will get the values of descending order, highest value on top and lowest value on the below, that is called the descending order. These are called the you can say order by clause. Order by clause is arranging the data into the particular pattern, so this is called the descending order। ओके, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आता है हैविंग क्लास। ध्यान दीजिएगा, थर्ड वन इज नथिंग बट हैविंग क्लास। यू कैन सी हियर हैविंग क्लॉज इज नथिंग बट यू कैन से व्हेन वी आर पुटिंग सम वैल्यूज कि
having city, having IT, having department, group by this and having the value this. But the second condition, you can say having class is used to filter the grouped by grouped data. ग्रुप का डेटा है लेकिन उसमें भी फिल्टर करना है आपको, देन यू कैन यूज द हैविंग क्लास। जैसे मान लो कि मैंने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और सैलरी चाहिए जो 10,000 से ज्यादा पाता है। तब 10,000 से ज्यादा पाता है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि और रिकॉर्ड को फिल्टर कर देगा जो 10,000 से कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंडीशन बना सकते हैं, या आप सिटी वाइज फिल्टर कर सकते हो, या आप डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि ग्रुप बाय सिटी एंड हैविंग द सिटी मुंबई फॉर एग्जांपल, कंडीशन बता रहा हूँ, just you're writing the condition. So you can see having clause is used to filter the group data. It used to display only those in group that satisfy the condition given in having clause. Remember this, only वही डेटा डिस्प्ले करेगा जो हैविंग क्लास में है, फिल्टर करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक जैसे आपने आपको अभी लिखा था यहाँ पर एक क्वेरी, क्या सेलेक्ट ई नेम from e name comma e department comma e salary e salary e salary from emp group by group by e salary having class means what, having salary e salary ग्रेटर देन 10,000। जैसा मैंने बोला आपको उसी का अप्लाई करते हैं, हैविंग सैलरी 10,000। अगर इसी को हम अप्लाई कर देते हैं, इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, सी यहाँ पर देखिए, अगर ये इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर कि नहीं इस कंडीशन के बेस पर मुझे सैलरी डिस्प्ले करनी है, आप देख सकते हो यहाँ पर व्हेन आई प्रिंट द इंटर कॉलम ई सैलरी, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, ASALARY salary, and you can print the enter, you can get only a person, single person who is getting the 20,000, only one value has been displayed, because having clause is there, having clause is filtering the over the group by clause में भी फिल्टर यूज कर दिया ग्रेटर देन 10,000 सैलरी, और इसी ग्रेटर देन को मैं लेस देन लिख देता हूँ यहाँ पर, लेस देन 10,000, then what will happen, you can see the maximum value has been displayed here, and आपने equal नहीं लिखा यहाँ पर, if you can write here e salary less than or equal to 10,000, then all the salary, all the values will be displayed here। आप देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट लेस देन और इक्वल टू 10,000 वाला भी इंक्लूड हो गया, तो आप देख सकते हो IT डिपार्टमेंट मनीष भी आ गया, ये भी आ गया ऐश्वर्या, यू कैन सी द 10,000, अकाउंट डिपार्टमेंट भी आ गया यहाँ पर, मार्केटिंग भी आ गया और HR भी आ गया। नल वाली वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई है, जो नल वाली वैल्यू आपके कॉलम में दिख रही थी वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई है। तो ये है आपका हैविंग क्लास। हैविंग क्लास इज यूज्ड टू फिल्टर ओवर द group by data। ग्रुप बाय क्या है, ग्रुप बाय क्लास एग्रीगेट फंक्शन कैन बी अप्लाइड to the group by according to the based on the column values। Okay, group by is used on the record based on column values, it is used to sort the data into the groups। Okay, group of the purpose of the aggregation it execute occurs before other clause like where are carried out। वेयर से पहले एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए जनरली वेयर क्लास इसमें यूज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप बाय क्लास। एंड यहाँ पर दो तीन चीजें और हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, यू कैन यूज द ज्वाइंस, यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल टेबल्स। ओके, we can work with multiple tables, you can see here retrieving the data from multiple tables, you can see the one table and you can the second table, you can join both the data when we are existing। So there are the 2 or 3 types of join here, here is not a full join, full outer join, here supporting only left outer and right outer, left and right। Okay, left and right and inner join। You can see here join is nothing but when we retrieve the data from multiple tables। Okay, when we are retrieving the data from multiple tables, multiple in the sense 2 टेबल से डेटा फेच कर रहा हूँ, 3 टेबल से डेटा फेच कर रहा हूँ, ऐसे कंडीशंस को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइंस यूज करते हैं या
सब क्वेरी यूज करते हैं। तो जो यहाँ पर आपको सीखना है वो है ज्वाइंस। ज्वाइंस यहाँ पर सिंपल ज्वाइन, इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन, 3 टाइप्स के ज्वाइन होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आउटर ज्वाइन आपके सिलेबस में शायद से सॉरी आपको सीखना, भाई आप सीख सकते हो, कोई बात नहीं है। सिंपल ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं उसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल ज्वाइन और ज्वाइन विदाउट नेम हैज रिटन हियर। आप देख सकते हो यहाँ पर सेलेक्ट ऑन दिस कंडीशन। ओके, और इसी कंडीशन को यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कि आप कैसे यूज कर सकते हो सिंपल ज्वाइन को। ओके, आप देख सकते हो, देख लो कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। यू कैन सी ए यस इज नथिंग बट एलायस ऑफ द स्टूडेंट टेबल एंड सी इज नथिंग बट एलायस ऑफ कॉलेज टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर यस स्टूडेंट टेबल से यस आईडी और स्टूडेंट टेबल से यस नेम और कॉलेज टेबल से कॉलेज आईडी एंड कॉलेज टेबल से कॉलेज नेम। फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल यस लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, आप मल्टीपल ज्वाइन आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको लेफ्ट नहीं यूज करना है, सिंपल ज्वाइन में यूज करता हूँ। यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग, सेलेक्ट अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं डायरेक्ट स्टूडेंट डॉट एस आई डी, स्टूडेंट डॉट एस आई डी कॉमा स्टूडेंट की जगह पर यस भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर यस यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे आपको डिस्प्ले करने में। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ स्टूडेंट यस, स्टूडेंट के लिए यस यूज करता हूँ ताकि आगे मैं क्रिएट कर सकूँ यहाँ पर यस टेबल। यहाँ पर यस टेबल नहीं, सॉरी, एलायस ऑफ स्टूडेंट टेबल। यस डॉट यू कैन से यस नेम कॉमा सी डॉट सी नेम, सी आई डी मतलब कॉलेज आई डी कॉमा सी डॉट सी नेम, college name. We are putting the college name from student yes comma college C where or you can say that you can use here where class for finding the condition. Yes dot yes id equal to c dot sid. Means a condition must be satisfied with the help of these queries. So that is called the simple join. You can use here and simple join and you will get the data, and you can get the data like that and put the semicolon here and press enter. You will get the data. This is called the simple join because there is no any simple join's name. The yes is nothing but yes is called the alias of the table. So this is called the simple join or equal join. Next आता है आपका left मतलब inner join. You can use the inner join. Here I'm trying to make something like select yes dot yes name, yes dot yes id मतलब student id comma yes dot yes name, student name comma c dot cid, college id comma you can say c dot c name, college name. You can write down here college name. Okay, from student yes, inner join college C, on one word on which मतलब on where, on which condition you are going to apply. That's why you are writing here yes dot yes id equal to c dot yes id. कॉलेज टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है उसके और स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी है उस पे दोनों के कंडीशन पर जो सेटिस्फाई होगा दैट विल डिस्प्ले दैट वैल्यू. दिस इज कॉल्ड द इनर ज्वाइन. यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द इनर ज्वाइन. इन द आउटर ज्वाइन यू कैन सी अच्छा एक बात ध्यान देना, इनर ज्वाइन एंड आप देख सकते हो इनर ज्वाइन एंड सिंपल ज्वाइन में डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको कुछ भी. देख सकते हो सब दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम ही आएगी. कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटा और होंगे तभी आपको तकलीफ आएगी, अदरवाइज कोई डिफरेंस आएगा, तकलीफ नहीं डिफरेंस आएगा. यहाँ पर लेफ्ट आउटर ज्वाइन यू कैन सी द लेफ्ट आउटर ज्वाइन. एक्चुअली आउटर ज्वाइन 3 टाइप्स का होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन. फुल आउटर ज्वाइन कंडीशन ये है
कि दोनों साइड्स में जो वैल्यू मैच होगी, दोनों टेबल्स में, लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल में जो वैल्यू मैच होगी उसका डेटा डिस्प्ले करेगा, जो मैच नहीं होगा उसका डेटा में नल लिख करके आएगा। अब यहाँ पर पहले सबसे पहले लेफ्ट आउटर ज्वाइन की वैल्यूज को हम डिस्प्ले कराता हूँ, फिर राइट आउटर का वैल्यू को डिस्प्ले कराता हूँ, देन यू कैन कंपेयर ऑन बोथ द कंडीशन, देन यू विल गेट द डेटा। दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मीनिंग है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में सभी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, रिपीटेड वैल्यू भी चलेगा, लेकिन राइट आउटर में जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, नल वैल्यू को प्रिंट करेगा। राइट आउटर में जस्ट रिवर्स, कि लेफ्ट आउटर की वैल्यूज को उतना ही वैल्यू डिस्प्ले करेगा और राइट आउटर की सभी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, जो वैल्यू मैच किया तो उसका वैल्यू आएगा लेफ्ट साइड वाले में, अदरवाइज नल वैल्यू डिस्प्ले करेगा। किसमें, राइट आउटर में। अब यहाँ पर राइट आउटर यूज कर सकते हो, राइट आउटर में राइट आउटर की राइट टेबल की सभी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर तो नल ऑलरेडी था लेफ्ट आउटर में, राइट आउटर में, तो यहाँ पर एक वैल्यूज को मैंने यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर देख सकते हो राइट आउटर में कोई नल नहीं आया है, लेफ्ट आउटर में एक नल आया है। यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट आउटर में, लेफ्ट टेबल में कोई वैल्यूज नहीं, कोई नल नहीं है, लेकिन राइट आउटर में एकदम ढेर सारे नल वैल्यूज आए हैं, क्योंकि डेटा मैच नहीं हुआ है उसके लिए। फुल आउटर में क्या होता है, दोनों साइड का नल, दोनों साइड के जो वैल्यूज रहेंगी सबको डिस्प्ले करता है, बट यहाँ पर नल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फुल आउटर ज्वाइन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर यूनियन ऑल का यूज करना पड़ता है। सो वी कैन यूज लाइक दैट, पुट द सेमीकोलन एंड प्रेस इंटर, यू विल गेट द ऑल द डेटा। दोनों को लेफ्ट आउटर राइट आउटर कंबाइन कर दोगे, यू विल गेट द फुल आउटर ज्वाइन। Okay, this is the very essential, very useful for you. Thank you for watching my channel Afflex Education. Thank you.